சந்தௌலியை சேர்ந்த வீரேந்திர சிங் விவசாயம் செய்யும் பொழுது தொழிலில் ஏற்பட்ட பல பிரச்சனைகளால் மனமுடைந்து போனார். தினமும் வெகு தூரம் நடந்தே வயலுக்கு செல்வார் இவர். பெரிதாக வருமானம் எதுவும் இல்லை. தன்னுடைய பண்ணையை விற்க விரும்பினார். ஆனால் அவரால் விற்க இயலவில்லை. தன்னுடைய நிலம் தங்கத்திற்கு நிகரான மதிப்பை பெறும் என்று அவர் கனவில் கூட நினைத்ததில்லை. ஆனால் வயலில் பயிரிடப்பட்ட பாரம்பரிய கருப்பு அரிசிக்கான நெல் கடல் வழியாக ஆஸ்திரேலியாவை சென்றடைந்தது. அங்குள்ள நுகர்வோரின் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பை இது ஏற்படுத்தியது. அதனால் கருப்பு அரிசியின் தேவையும் அதிகரித்தது. ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்புகளும் பெருகின. உத்தரப்பிரதேசத்தின் சந்தௌலி பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்று. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மணிப்பூரில் இருந்து கருப்பு அரிசிக்கான விதை நெல்லை கொண்டு வந்து அங்கு விளைவிக்கும் ஒரு சோதனையை அரசாங்கமே மேற்கொண்டது. வீரேந்திர சிங்கின் வயலில் கருப்பு நெல் பயிர் செழிக்க தொடங்கியது. பயணம் இதோடு நிற்கவில்லை. சந்தௌலியில் வீரேந்திர சிங்கின் எதிர்காலம் மட்டும் மாறவில்லை, ஆனால் அவரை போன்று பல விவசாயிகளின் வாழ்க்கை நிலையும் மாறியது. முதல் முறையாக 520 மெட்ரிக் டன் கருப்பு அரிசி சந்தௌலியில் இருந்து அரசாங்கத்தால் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. உண்மையில் சந்தௌலி கிராமத்தின் வயல்கள் இப்பொழுது அரிசியின் உருவில் தங்கத்தை விளைவிக்கின்றன. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं। चाहे वो कुपोषण हो, माता और शिशु मृत्यु दर हो, बैंकिंग सुविधा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हों, हम तमाम पैरामीटर्स पर लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं. மாவட்டங்களில் சாலை வசதிகள் இல்லை, மருத்துவமனைகள் இல்லை, வேலைவாய்ப்பு இல்லை. பின்தங்கிய கதையை தொடங்கிய இடத்திலிருந்து அது வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது போன்ற மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 112ஆக அதிகரித்தது. அதனால் இடப்பெயர்வு தொடங்கியது. இதன் விளைவுதான் தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம், குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் ஆகியவை. இத்தகைய சூழ்நிலையில் அவர்களின் வாழ்வில் புதிய நம்பிக்கையை கொண்டு வருவதற்காக ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எனும் மாவட்ட அபிவிருத்தி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. एक 112 जिलों को अब हमारी सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं. அனைவருடன் அனைவரது வளர்ச்சி என்ற நோக்கத்தை மனதில் கொண்டு மாவட்டங்களை அடையாளம் காண்பதிலிருந்து மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி வரை இன்று அதே பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் வளர்ச்சியின் புதிய கதையை சொல்கின்றன. வேகமாக வளர்ந்து வரும் பகுதிகள் இம்மாவட்டங்களில் உருவாகின்றன. ब्लैक राइस की खेती हम लोग जब से किए हैं तो ब्लैक राइस में हमारे खेतों में जो है किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डालना पड़ता है और हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और हमारी जो कॉमन धान है जो हमारे जनपद में पहले बेचा जाता था उसको 19 से 20 रुपये केजी कुंटल, 1900 से 2000 रुपये कुंटल बेचा जाता था। उसके सापेक्ष ब्लैक राइस की कीमत 85 रुपये केजी जो है बेचा जा रहा है, जिससे हमारे किसानों को इससे कई गुना फायदा हो रहा है। और इससे हमारे किसानों के आर्थिक ब्लैक राइस की खेती करने से हमारे किसानों की आमदनी जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो रही है। सरकार के प्रयासों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से
किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल, ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है। चंदौली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 साल पहले काले चावल की एक वैरायटी का प्रयोग यहां किया गया था। पिछले साल खरीफ के सीजन में करीब 400 किसानों को ये चावल उगाने के लिए दिया गया। इन किसानों की एक समिति बनाई गई, इसके लिए मार्केट तलाश किया गया। सामान्य चावल जहां 35-40 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं यहां बेहतरीन काला चावल 300 रुपये तक बिक रहा है। मणिपुर से हम लोगों को मात्र 25 किलो बीज उपलब्ध कराया गया। 25 किसानों ने उसकी खेती की। दूसरे साल बीज संवर्धन हुआ और हमारे जनपद के काफ़ी किसानों ने, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उसकी खेती की। जो उत्पादन हुआ वह उत्पादन हमारे जनपद में इकट्ठा किया गया। सभी किसानों का हमारी समिति इकट्ठा की और ऑस्ट्रेलिया और कतर विदेशों में उसकी जो है बिक्री हुई। सभी लाभुकों को बुला के हम लोग ग्रामीण स्तर पर जो भी पोषण दिवस रहता है उस दिन पोषण का बंटवारा करते हैं, देते हैं लाभुक को एक एक करके। और टीकाकरण में भी टीका दिलवाते हैं। कोई कुपोषण ना रहे करके उसका वृद्धि चार्ट वगैरह और वजन वगैरह करवाते हैं। मेरा सहिया दीदी हर महीना मेरे बच्चे को आहार देने के लिए बुलाती है और समय समय पर भी दवा देने के लिए भी बुलाती है। पोषाहार लेकर जाते हैं और सहिया दीदी मोबाइल में अपने करके और रखते हैं। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक गांव, एक एंटिटी के रूप में पीछे ऐसा नहीं है। वहां रहने वाले लोग, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनके हक, उनके अवसर, इन सब में वो अन्याय का शिकार हुआ होता है। उस बाबा साहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ही ब्लैंक छोड़ दिया था। देश के ये वो जिले थे जो सबसे पिछड़े थे। साथियों, आज जब हम बेटर टुमारो की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन जिलों में 5-10 लाख नहीं, देश के 15 करोड़ अत्यंत गरीब लोग रहते हैं।
ये लोग मुख्यतया आदिवासी हैं, जनजातीय हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। क्या बेटर टुमारो के लिए इनके सपने कोई मायने नहीं रखते थे? क्या इन जिलों के गरीबों को अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने का अधिकार नहीं था? இவர்களது வாழ்வில் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதற்காக மாவட்டம் வாரியாக திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அனைவருடனும் அனைவரின் வளர்ச்சியும் மனதில் வைத்து மாவட்டங்களை அடையாளம் காண்பதில் இருந்து இன்று மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை உருவாக்குவது வரை மாவட்ட வளர்ச்சியின் புதிய சரித்திரம் உருவாகியிருக்கிறது. பல பகுதிகள் வேகமாகவும் வளர்ந்து வருகின்றன. ऑनलाइन क्लास भी एक पार्ट है स्मार्ट क्लास का और डिजिटल एजुकेशन। हम मोदी ये अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था क्लास 9, 10 एट द बिगिनिंग, तो अभी धीरे हम लोग 11, 12 में भी जा रहा है। सो ये क्लास 9, 10 में जो हम लोग का सिलेबस पढ़ा रहा है, इसमें वी आर बेसिकली टीचिंग द बेसिक्स ऑफ MS ऑफिस एंड पार्ट A, पार्ट B दोनों सिलेबस को भाग किया गया था। सो इट्स वेरी गुड। अरुणाचल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म थ्रू दिस मीडियम दैट इट इज़ बीइंग वेरी बेनिफिशियल। वी आर ऑल्सो डूइंग कियान स्मार्ट क्लासेस। हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। वहाँ पानी बहुत कम आता था। हमको 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। अभी नरेंद्र मोदी की वजह से हम घर पे पानी आता है तो हमें अच्छा लगता है। 2017 के पहले की बात करें तो हमारे घरों में पानी नहीं आता था। हमें 2-3 किलोमीटर दूर जाके पानी भरना पड़ता था, इसीलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर के अन्य कामों में हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। पहले पानी की बहुत समस्याएं होती थी, खेत जाना पड़ता था, कुएं से लाना पड़ता था, मम्मी वगैरह बहुत परेशान होती थी। अब जल जीवन मिशन के कारण घर घर पानी पहुंच रहा है और पानी पाइपलाइन लग गई है तो पानी भी पर्याप्त आ जाता है। पहले पानी में बहुत परेशानी होती थी लाने में ले जाने में, तो घर बैठे पानी आ रहा है। அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்திய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் அசாமின் கோல்மார்ட் வலைத்தளம். இங்கு பெண்கள் தங்கள் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை ஆன்லைன் மூலம் விற்க இ-காமர்ஸ் மூலம் ஒரு புதிய முன்மாதிரி அமைக்கப்பட்டதே ஆகும். हम लोग ई प्लेटफॉर्म का माध्यम लिया है, जिनमें हम लोग गोलमार्ट नाम से एक ई मार्केट प्लेस खुला है, जिसमें हम लोग का जितना भी SHG प्रोडक्ट्स है वो सब गोलमार्ट में अवेलेबल होगा और ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी अपना घर से व जो भी अपना एरिया है वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकता है। दूसरा एक हम लोग रखा कि जो सामान ऑनलाइन के वगैरह भी हम लोग यहाँ पे एक शोकेस के लिए शोरूम खुला हुआ है, जिसका नाम गोलमार्ट से हम लोग रखा गया है। वहाँ से हम लोग कोई भी यहाँ पे आते हैं कि गोलपारा में विजिट किया, ठीक है, हम लोग गोलमार्ट का क्या सामान है देख के खरीद के ले जा सकते हैं, तो उसका भी व्यवस्था रखा है।
குஜராத்தின் கட்ச் பகுதி உள்ள புஜ் பகுதியின் பாபி பெண்ணை பாருங்கள். வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள் இருந்த போதிலும் அவர் அதிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளார். தன்னுடைய கிராமத்தில் இருந்தபடியே அவர் உலகம் முழுவதும் ஆன்லைன் போர்ட்டல் pabiben.com வழியாக பொருட்களை விற்று வருகிறார். जब मैं 5 साल की थी तब मेरा पिताजी गुजर गए। सबसे बड़ी होने के नाते घर चलाने का सारा बोझ मेरी माँ के कंधों पे मैं नहीं डालना चाहती थी। 4th क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, पर मुझे पता था कि मैं अपने लिए कैसी ज़िंदगी चाहती हूँ। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ मैं आज़ाद होंगी और अपने पाँव पे मैं खड़ी रहूँगी। हम अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कढ़ाई नहीं कर सकती। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा, तो मैंने एक नई कला को जन्म दिया, मशीन से कढ़ाई करने की, और इस तरह हरी जरी का जन्म हुआ और इसे पाबी जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे कई औरतें मेरे साथ जुड़ गई और ऐसे ही हमने अलग अलग कपड़े, बैग, रजाई और कुशन कवर बनाने लगे। मुझे पता था कि मेरा काम अच्छा है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अलग अलग शहरों में होने वाले एग्जीबिशनों में भाग लेने लगी। हमारा एक वेबसाइट भी है pabiben.com, जो पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। मेरे कारोबार से मेरे समुदाय की 60 महिलाओं को रोजगार मिलता है। आज मेरी कंपनी का 20 लाख रुपये का टर्नओवर है, फिर भी मैं वो दिन नहीं भूली जब मैं 1 रुपये के लिए पानी भरकर लाती थी। अपने वो एक लक्ष्य को पहचानो, वो लक्ष्य तुम्हें हर पल चलते रहने की हिम्मत देगा। சமுதாயத்தின் விளிம்பில் வாழும் மக்கள் மீது எப்பொழுதும் அக்கறை கொண்டவர் நமது பாரத பிரதமர். இதன் விளைவாக பல பின்தங்கிய கிராமங்கள் மின்வசதி பெற்றன. கிராம மக்கள் அதை கொண்டாடினார்கள். சுதந்திரத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக சத்தீஸ்கரின் பல்ராம் ஜோக்பாத் கிராமத்தில் மின்வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த வரலாற்று நாளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டார். कोई भी गांव या बस्ती, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो, बिजली सुविधा से वो वंचित न रहे, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। जहां पर ग्रिड से जोड़ना संभव न हो, उन गांवों पर और उन बस्तियों में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले चिमनी उजाला में रहते सर। चिमनी जी काफी तकलीफ होता है पढ़ाई करने में। बिजली आया है तो ज्यादा खुशहाली है गाँव में। टीवी 5 साल पहले मेरे बड़े भाई को दाई में मिला था। फिर लाइट नहीं रहने की वजह से अपन रखे थे घर में, अभी लाइट आया तो लगाए। और गांव में सब अभी मिल के देखते हैं सर, एक ही टीवी है पारा में। बिजली नहीं होने की वजह से हमारी नुकसान बड़े बहुत से नुकसान थे। जैसे हम टीवी नहीं देख सकते थे, फैन नहीं चला सकते थे, वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते थे, ना हम कभी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते थे, और जिसकी वजह से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम, पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। இத்தகைய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு சர்வதேச அளவிலும் தேசிய அளவிலும் பாராட்டுகள் குவிந்தன. ஜூன் 2021 ஐக்கிய நாடுகள் மேம்பாட்டு திட்டம் இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டம் குறித்த அறிக்கையை வெளியிட்டு அதனை பாராட்டியது. மேலும் இப்படிப்பட்ட மாதிரியை உலகம் முழுவதும் செயல்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை நமக்கு விளக்கியது.